Hello students, how are you all? Okay, so we are going to cover, this is almost the last video of this chapter. Yes, it is the last video because in this I am going to cover all the twisted questions which can be asked. I have written here edge. Edge I mean they can ask you how come India is better than China. They can ask you how come China is better than India. They can ask you how come India is better than Pakistan, or maybe Pakistan is better than India. So we have to compare by using the previous knowledge which you have gained throughout the whole chapter, and you have to pen it down. Okay, so for that you have to have good knowledge and understanding about the whole chapter which we've already covered. Alright, so let's compare. So before that there are certain meanings which are given in your notes, so you can go through so that you can use those meanings in your writing. जैसे HDI का meaning can be asked, that what is HDI? Okay, indicator है जिससे human development पता चलता है. So you can just go through life expectancy, adult literacy and maternal mortality. So I'll start with edges. That is, why does China has an edge over India? Now you have to talk about China over India. Okay, so when it is written China has an edge over India means China is better than India. तो आपको पीछे नॉलेज में से जितने भी पॉइंट्स में चाइना बेटर लग रहा था इंडिया से, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पेन डाउन करने हैं. So I've done it for you. The Chinese reforms process began more strongly and comprehensively during 1980s. हमने कहा था ना 80s तक हम इकट्ठे आए, 80s के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ और चाइना ने फ्लाइट ले ली. At this time India was in the midstream of rather slow growth process. बात तो है, पीछे वाला यूज कर लिया. दूसरी बात, by then the rural poverty in China was declining by, ये जरूर लिखना है, रूरल एरिया में चाइना ने 85% तक अपनी पॉवर्टी कम कर दी थी, which is an achievement. किस पीरियड में? वही 70s to 80s में, 78 से 89 में. In India at this time it is declining by only 50%. उस टाइम उन्होंने 85% से कर दी, हम अभी 50% तक आए हैं. So India, China is better than India in this regard. Moreover, the global exposure of the Chinese economy कैसी है? Global exposure all over the world. China is established there, they are selling their products all over the world. So exposure of Chinese economy has been far wider than the Indian economy. Also China's export driven manufacturing, export driven, खुद की consumption कम है, सब दुनिया को बांट रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, has been the reason of exponential growth. समझते हैं exponential growth, इतना foreign exchange earn करते हैं कि वो multiplying effect पर है growth में थे या फिर. And India constitutes to be only a marginal player in the international market, right? So this is how China is better than India. So they can ask you, why does Pakistan has an edge over India? पाकिस्तान का इंडिया से better. I doubt such kind of question will come, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छा तो रिश्ता रहा नहीं है, तो हमारी जो प्रोफेसर्स हैं they should not choose although कि भाई पाकिस्तान इंडिया से बेटर कैसे है, तो हमारे वो टोन में आ जाता है, बिकॉज वी हैव नॉट वेरी गुड पॉलिटिकल रिलेशंस विद देम, एंड इवन बॉर्डर पर भी हमारे कुछ ना कुछ अब तो चाइना से भी चलता रहता है. सो दैट इज वाई इवन इफ दे आस्क तो किन चीज़ों में बेटर, वो याद है, इम्प्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन, इन चीज़ों में हम लिखेंगे. ओके, ऑल्दो द टू कंट्रीज स्टार्टेड टुगेदर, पाकिस्तान थोड़ा बेस बना दिया, हैज सीन अ बेटर रिजल्ट फॉलोइंग आर दी एरियाज. एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, रिडक्शन इन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, उन्होंने काफी किया. माइग्रेशन ऑफ पीपल, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है. रूरल टू अर्बन, माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल. This is how Pakistan is better than India. How India is better than Pakistan? This can also be a question. India over Pakistan. Alright, इसमें करते हैं India is better placed than, ये आ सकता है, better placed than Pakistan in the areas of underline skilled manpower and research and development institutions. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर ISRO is working better than NASA. Sorry. We are producing scientists, many scientists, engineers all over the world हम सप्लाई करते हैं. डॉक्टर्स हमारे यहाँ से जाते हैं, तो हमारे यहाँ जितने रिसर्च सेंटर्स हैं, जितना भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, वो हमारे यहाँ पर बेटर है. इंडियन साइंटिस्ट एक्सेल इन द एरिया ऑफ, कहाँ कहाँ हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में. पहले हम फॉरेन से, बाकी देशों से, रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते थे. यू नो इट्स एन अचीवमेंट. नाउ वी आर गिविंग इट टू देम, एंड दैट टू ऑन अ वेरी वेरी
I would say economical rate. And then space research में, as I said, ISRO is working very well. Electronics and avionics, इनमें भी हम genetics में हम बहुत काम, medicines बनाने में हम बहुत काम कर रहे हैं. Telecommunications we are very far better. The number of PhDs produced by India, PhDs are the researchers by India in science and engineering every year about 5,000 is higher than the entire stock of PhD in Pakistan. जितने भी पाकिस्तान में हैं हम यहाँ पर एक साल में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं. Issues of health facilities in general and infant mortality in particular are better addressed in India than पाकिस्तान. अब ये क्वेश्चन या तो एजेस के फॉर्म में आएगा या ये लास्ट पोर्शन में आ जाओ, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंट्रीज. ओके तो इसमें आप क्या करते हो, कॉमन चीजें निकालते हो. जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया और पाकिस्तान की सक्सेस एक तरफ लिख दी, फेलियर्स एक तरफ लिख दिया. अगर दोनों आए, अगर आ जाए सिर्फ सक्सेसेस बताइए तो आप उसको लिख दीजिए उसको पैराग्राफ में. इंडिया और पाकिस्तान की सक्सेस देखते हैं. इंडिया इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी is now significantly low in both countries. Both the countries, India and Pakistan, have achieved self-sufficiency in food. You remember, जब Green Revolution आया तो हम food shortage से food surplus में आए, पाकिस्तान भी. Then both the countries have done extremely well in developing their service sector. You remember, LPG के बाद हमारा service sector भी improve हुआ. Same goes with the Pakistan. Use of modern technology in improving in both the countries. Two countries, Pakistan and India, have done extremely well in doubling their per capita growth income in spite of high growth rate of population. तो ये तो इन सबके सक्सेस हो गए जी इंडिया और पाकिस्तान ने जो इकट्ठे अचीव की. फेलियर क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हम दोनों देशों में है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो था वो जीडीपी में कम है, बट मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ द कंट्रीज, सो दैट इज स्टिल देयर. ओके सो दैट्स द फेलियर. अब आ गया सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजीज इन चाइना. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको चाइना के पहले वाले रिफॉर्म्स वाली क्वेश्चन नहीं आता, उनके जो भी पॉलिसीज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, देन दिस क्वेश्चन कैन कम. सो क्या सक्सेस स्टोरीज हैं जी, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, मतलब डिसेंट्रलाइज किया, नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ यू प्रोड्यूस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, घरों के पीछे बैकयार्ड इंडस्ट्रीज खोल दो. देयर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन मेनी रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में भी उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज को मेंटेन किया थ्रू द कम्यून सिस्टम. यू रिमेंबर क्या किया था, कम्यून्स बनाए, 26,000 कम्यून्स वर वर्किंग दैट टाइम. देयर वाज अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. Then there was an existence of infrastructure in the areas of education and health and land reform. Infrastructural changes तो माना जाता है कि बीजिंग जो है that looks better than New York. इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है. ये हम पेपर में नहीं लिख देंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ओके, ट्रांसपोर्टेशन लिख दीजिए. रूरल एरियाज में सब जगह बड़ा है. दिस इज ऑल द सक्सेस. फेलियर क्या है, स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब वैसे कह नहीं सकते मॉडर्नाइजेशन नहीं है वहां पर, सो बट इट्स गिवन इन द एनसीईआरटी, सो यू कैन पिक इट अप, अदरवाइज यू लीव. माओइस्ट विजन जो है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, shunning is the rejection or avoiding of foreign technology was a fail. अब ये चाइनीज क्या चाहते थे, they will use their own technology and they will work, and they never wanted to take it from others. So that was the mindset. So किसी जगह पर किसी तरह से तो ठीक भी है कि अपनी ही टेक्नोलॉजी बनाएंगे, लेकिन बहुत बार लर्निंग फ्रॉम अदर्स इज ऑल्सो समटाइम्स बेटर. सो इस रिगार्ड में कह रहे हैं कि ये एक फेलियर था. डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स जो हमने कम्यून सिस्टम्स के थ्रू डिफाइन किए, दिए लोगों को, कलेक्टिवाइजेशन एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अदर इनिशिएटिव्स, द पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 78 वाज द सेम एज इट वाज इन मिड 1950s. क्योंकि यू रिमेंबर वो फेल होते गए. ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल हुआ, फिर उसके बाद प्रोलेटेरियन फेल हो गया. ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्यों फेल हुआ था, क्यों हुआ था, ड्रॉट आ गया था. फिर उसके बाद प्रोलेटेरियन क्यों हुआ, दे हैड अ डिस्प्यूट विद रशिया एंड रशिया कॉल्ड देयर प्रोफेशनल्स बैक. सो यू रिमेंबर. तो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलने के बाद भी दिस इज ग्रोथ का जो था वो बहुत ज़्यादा अटेन नहीं कर पाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज.
अब नट शेल में अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा समराइज करें तो इस चैप्टर में लर्न करने वाली चीजें बहुत कम है, अंडरस्टैंडिंग वाली ज्यादा है। जो लास्ट पोर्शन है एजेस, आई डोंट थिंक सो यू हैव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर और दिस कैन बी मेड ऑन योर ओन। ये तो मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए, एक स्टाइल पता चल जाए कि अगर इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाया जाएगा, सो आई शुड नॉट बी कंफ्यूज, ओहो एज तो हमने पढ़ा ही नहीं, सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ी। अरे भाई वही इंफॉर्मेशन को यूज करना है, दे मे यूज सम अदर वर्ड रादर देन एज, so it's okay. So you're supposed to talk about what you've gained from the rest of the chapter. So पूरे चैप्टर में क्या था, पहले चाइना की स्ट्रैटेजीज बता दी, देन पाकिस्तान की बता दी, इंडिया की बता दी, फिर उसे कंपेयर कर दिया पर कैपिटा में, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में एंड लास्ट इंडिकेटर्स में। बस दिस इज द होल चैप्टर। All right, so you have to go through and you have to learn and memorize certain figures because being economic students you should be familiar with the data also. Bye bye, take care.